And viewers, let's go ahead to the top story we're tracking at this point of time on Republic TV. And since the Hamas terrorists launched an unprecedented attack on Israel on October 7th, our crews have been on the front line, getting you minute-to-minute updates of this ever-raging war. And here is an exclusive report filed by my colleague Gursimran Singh from the Armistice Agreement line, a key post near the Israel-Gaza border. Take a look. Israel has carried out another major airstrike on the Hamas infrastructure deep inside the Gaza territory. Right now we are reporting from the Armistice line of agreement, and you will see a huge smoke coming out of the areas. There multiple airstrikes have been carried out, and this smoke, the white smoke that is coming out, is alleged to be the headquarters of the Hamas that are very close to the Armistice line of agreement that have now been hit by the Israel Defense Forces. And as you see, the huge smoke that is coming out, these are multiple airstrikes that are being carried out by the Israel Defense Forces. And on the 43rd day of the ongoing war, the Hamas continues to pose a threat to the Israel Defense Forces, and that's why the areas that were cleared in the first 6 days of the operations have been reactivated again by the cadres of Hamas. They are using their terror tunnel networks, as being said by the Israel Defense Forces, to carry out the attack. Though there are humanitarian pauses this being given by the Israel side, but these massive strikes that are taking place inside the Gaza Strip speaks of the volumes that how after 43 days of the war, the Hamas is still active and carrying out the attacks and using their terror infrastructure to target the Israel Defense Forces that are entering from the south of the Gaza, that towards the north of from south of Israel to north of the Gaza, to carry out the attack on the Hamas infrastructure. But that infrastructure that was reactivated and was being used again by the Hamas has been hit by multiple airstrikes by the Israel side. And as we speak, the loud smokes banks can also be heard, and the smoke that is coming out from the infrastructure can be seen very close to the Armistice line of agreement that divides the Gaza Strip from the Israel state. With Surendra Awad, Gursimran Singh for Republic Media Network. Viewers, Israel is not only fighting Hamas terror, but also the Hezbollah terrorists along the border. And here's yet another exclusive report from near the Lebanon border. Take a look. इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं। ये जो टेंट देख रहे हैं, इसमें सैनिक रहते हैं, उनके आर्म्स और वेपन्स रहते हैं। और जिस जगह पर हम हैं, यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर लगातार आर्टिलरी फायर्स हो रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मतोत जो टैंक्स हैं, मेरे ठीक पीछे वो इंस्टॉल किए गए हैं। और ये आर्टिलरी जोन है जहाँ से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा, ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहां से वो फायर करते हैं, और उसका जवाब यहां से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। इस तरह के बहुत सारे टैंक आपको टेंट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये कैमोफ्लॉग टेंट्स कहे जाते हैं। कैमोफ्लॉग यानी दूर से ये दिखाई नहीं देते, इनका कलर ऐसा होता है कि ये जमीन और मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए दुश्मन की आंखों से बचे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरीज आज इंस्टॉल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आर्टिलरी टैंक्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये पूरा जो इलाका है, ये वॉर जोन है, एक्टिव वॉर जोन के अंदर हम हैं। और यहां से अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, वहां पर फायर दागे जा रहे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। ये देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, यहां पर सैनिक सोते हैं और इन्हें भी कैमोफ्लॉग किया गया है ताकि दुश्मन की निगाहों से वो बचे रहें। ये स्लीपिंग टैंक्स हैं। और वहां देखिए, वहां पर ब्रीफिंग हो रही है। वो अगर दूर आप देखें तो वहां पर सैनिकों की ब्रीफिंग होती हुई आपको दिख रही है। क्योंकि ये एक्टिव वॉर जोन है, यहां पर सैनिकों को ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर कैसे उन्हें मुकाबला करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन इलाकों में हमला करना है, किन किन तरीके से उन्हें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निशाना बनाना है, किस तरह के वेपन्स का यूज करना है, किस तरह के गोले इस्तेमाल होने हैं, उनकी रेंज क्या है, उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेल सैनिकों को बताई जा रही हैं। यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो हर घंटे ब्रीफिंग लेते हैं और लोगों से, और जो
सैनिक हैं उनसे लगातार बात करते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। और ठीक पीछे भी आप जो देख रहे हैं ये सारे इंस्टॉलेशन, आर्मी इंस्टॉलेशन के बीच में हम खड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले कोई भी मीडिया नेटवर्क इस एक्टिव वॉर जोन में अभी तक नहीं पहुंचा है। और यहां पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है और ये जो पूरा इलाका है ये आर्टिलरी जोन कहा जाता है। इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं। ये जो टेंट देख रहे हैं इसमें सैनिक रहते हैं, उनके आर्म्स और वेपन्स रहते हैं। और जिस जगह पर हम हैं यहां से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। यहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर लगातार आर्टिलरी फायर्स हो रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मतोत जो टैंक्स हैं मेरे ठीक पीछे वो इंस्टॉल किए गए हैं। और ये आर्टिलरी जोन है जहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा कि यहाँ पर कितनी भीषण और कितनी बड़ी तैयारी है। ये तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। ये आर्टिलरी जोन है जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहां से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहां से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं वो जवाब देते हैं। इस तरह के बहुत सारे टैंक आपको टेंट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये कैमोफ्लॉग टेंट्स कहे जाते हैं। कैमोफ्लॉग यानी दूर से ये दिखाई नहीं देते, इनका कलर ऐसा होता है कि ये जमीन और मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए दुश्मन की आंखों से बचे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरीज आज इंस्टॉल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आर्टिलरी टैंक्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये पूरा जो इलाका है ये वॉर जोन है, एक्टिव वॉर जोन के अंदर हम हैं। और यहां से अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर फायर दागे जा रहे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। ये देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर सैनिक सोते हैं और इन्हें भी कैमोफ्लॉग किया गया है ताकि दुश्मन की निगाहों से वो बचे रहें। ये स्लीपिंग टैंक्स हैं। और वहां देखिए, वहां पर ब्रीफिंग हो रही है। वो अगर दूर आप देखें तो वहां पर सैनिकों की ब्रीफिंग होती हुई आपको दिख रही है, क्योंकि ये एक्टिव वॉर जोन है। यहां पर सैनिकों को ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर कैसे उन्हें मुकाबला करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन इलाकों में हमला करना है, किन किन तरीके से उन्हें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निशाना बनाना है, किस तरह के वेपन्स का यूज करना है, किस तरह के गोले इस्तेमाल होने हैं, उनकी रेंज क्या है, उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेल सैनिकों को बताई जा रही हैं। यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो हर घंटे ब्रीफिंग लेते हैं और लोगों से और जो सैनिक हैं उनसे लगातार बात करते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। और ठीक पीछे भी आप जो देख रहे हैं ये सारे इंस्टॉलेशन, आर्मी इंस्टॉलेशन के बीच में हम खड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले कोई भी मीडिया नेटवर्क इस एक्टिव वॉर जोन में अभी तक नहीं पहुंचा है। और यहां पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है और ये जो पूरा इलाका है ये आर्टिलरी जोन कहा जाता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, लेबनान बॉर्डर, इजराइल।